2 मिनट शांति से ध्यान करें। ठीक से बैठ जाएं। शरीर ढीला हो, कमर सीधी हो, आंख मुंह बंद हो। Try to collect your thought from outside and try to concentrate. Close your eyes and mouth. Erect your backbone. Your backbone should be straight. Relax your body. Be tensionless. Visualize endless space full with divine energy, and visualize globe in the space, your body on the globe in the space too. Visualize you are sitting on the globe in the space, and surrounding your body divine energy is flooding the form of oxygen, and same energy is entering into your body through your nostrils and giving you life. We are alive due to that divine energy. So be aware about it. Pay your heed on your breath. And see, source of life is infinite. Our finite form, finite body, finite individual existence is nothing but projection of infinite energy. Try to think in this way. Be calm and quiet. Now try to take deep breath. Deep breathing. When you exhale, you think that you are receiving divine energy from infinite source. But when you inhale, you think in this way, you are receiving divine energy from infinite source. When you exhale, you think that you are pouring yourself into infinity. Be calm and quiet, and chant any mantra, any name of Godhead, whatever you like. If you have any mantra given by your Guru, you can chant that mantra. Otherwise, you can chant any holy name of Godhead. Be one with infinity, because surrounding your body there is nothing but infinite energy. Think about that. Be one with that. There are countless holes in your body, and through each hole, energy is entering in your body. So be aware about it. Calm and quiet and serene. Meditate on your breath. Watch your breath. Inhale and exhale deeply. Meditate 2 minutes in this process. This is a very great process for meditation. Mind and sound should be one. You can create any sound with your breath. Holy name of Godhead. Your attention on your breath, automatically your mind will be objectless and will be calm and quiet. Always, your individuation is finite, but source of individuation is infinite. You are projection of infinity.
Your breath, take deep breath. Be aware about your little self and source of self too. Recite Pranava Omkara with me 3 times. And think that you are elevating yourself from gross, subtle and causal phenomena of nature and merging yourself into ocean of consciousness. Okay? ओम भृगुः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नयासुः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। May God bless you all. I think that everybody knows Hindi here. And there are some of my disciples who came with me from Holland. They are originally from Suriname. Due to that, they don't know English. Only few people know. So, I will give my talk in Hindi. And if anybody is not able to understand my teaching, can ask after this talk, and if anybody has any question or any kinds of problems, he can ask from me after that. Thank you very much. मेरी प्रिय आत्माओं, दैव योग कहिए। मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं, कनेडा में रहते हैं, श्याम सुंदर सहगल और उनका सारा परिवार, उनके दोनों लड़के बहुएं, सभी मेरे बड़े प्रिय शिष्य हैं। और उनकी पुत्री यहाँ रहती है, उसके वजह से यहाँ आज मेरा आना हुआ। कारण वही बनी और उसके नाते इस परिवार से परिचय हुआ और इन्होंने आमंत्रित किया। आज मैं यहाँ आप लोगों के मध्य में हूँ। वैसे मैं इन देशों में लगभग 22 वर्षों से रह रहा हूँ। इंग्लैंड में, अमेरिका और कनाडा में 16 वर्षों से मैं हॉलैंड आया करता हूँ। वहाँ मेरा आश्रम है, मेरा मिशन है ब्रह्म ऋषि मिशन नाम से, और हजारों मेरे शिष्य हैं हॉलैंड में भी और इन देशों में। लेकिन ऐसा कभी योग नहीं बना कि आपके इस जर्मनी में आप लोगों के मध्य में कभी सत्संग होता
अब की दयोग से मेरा आना हुआ। मैं 12 महीने दुनिया में घूमता ही रहता हूँ अक्सर। कुछ महीने भारत में घूमता रहता हूँ, कुछ महीने इन देशों में, और पश्चिम के कई देशों में मेरे अपने आश्रम हैं। मेरा मिशन है ब्रह्मर्षि मिशन नाम से, और उसके माध्यम से जैसे मेरे प्रिय शिष्य चिद्घनानंद अभी आपको बता रहे थे, मैं भारतीय संस्कारों का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ फिलॉसफी और योग के माध्यम से। ये चिद्घनानंद जो है ये भी सूरीनाम के रहने वाले हैं। अब तो हॉलैंड के निवासी थे ये, और 10 वर्षों से मेरे साथ रह करके साधना और स्वाध्याय कर रहे थे। अब तो उन्होंने संन्यास ले लिया है, और पहले ये कंप्यूटर इंजीनियर थे और अपनी इंजीनियरिंग की सर्विस छोड़ करके संन्यास की दीक्षा ली, और मेरे पास रह करके दर्शन शास्त्र धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और योग की साधना की। ऐसे बहुत से मेरे शिष्य शिष्याएं हैं जो परिव्रज्या ग्रहण करके देश और विदेशों में भारतीय संस्कारों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस समय दुनिया बहुत छोटी हो गई है, एक देश दूसरे देश के बहुत नज़दीक हो गया है। अब 100-200 वर्ष पहले वाला यह विश्व नहीं रहा, बहुत छोटा हो गया है। कोई व्यक्ति चाहे तो 24 घंटे में पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके अपने घर पहुंच सकता है, इतना छोटा हो गया। पहले हमारे ऋषियों ने उद्भावना की थी, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो महापुरुष हैं, उदार चरित हैं, उनके लिए सारी पृथ्वी एक छोटा सा परिवार है। आज वो साकार हो गया है। अब ये उद्भावना नहीं रही, कल्पना नहीं रही, अब ये साकार हो गया है। दुनिया के बहुत से देशों में घूमता हूँ और देखता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ ये लगता है मैं अपने परिवार में पहुँच गया हूँ। विभिन्न भाषाओं को लोग बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के आचार विचार रखते हैं, विभिन्न प्रकार के विश्वासों में बंधे हुए हैं, फिर भी मनुष्यता की दृष्टि से हमें कहीं कोई अंतर नहीं दिखाई देता। जहाँ भी मैं जाता हूँ हमें मनुष्य मिल जाते हैं और मेरी बात सुनते हैं बड़े श्रद्धा और प्यार से, और उसको फॉलो करते हैं। इसलिए इस समय आवश्यकता है एक ऐसे विचारधारा की, एक ऐसे धर्म की जो मनुष्य में किसी भी प्रकार की विभाजक रेखा न खींचने वाला हो, जो मानव मात्र के लिए सही दिशा प्रदान कर सके, जो मानव मात्र के लिए उपयोगी हो, जिसमें मानव में भेद के लिए कोई स्थान न हो। ऐसे धर्म की आवश्यकता है, ऐसे दर्शन की आवश्यकता है। पश्चिम के कुछ लोगों ने ऐसे दर्शन देने की कोशिश की, लेकिन वो सार्थक और सफल नहीं हुई, क्योंकि उनकी विचारधारा विज्ञान सम्मत नहीं थी। और ये विज्ञान का युग है। इस युग में कोई भी ऐसी विचारधारा स्थायी रूप से मनुष्य के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती जो विज्ञान सम्मत न हो। चाहे वह धर्म से संबंधित हो, चाहे ईश्वर से संबंधित हो, चाहे वह जीवन से संबंधित हो, चाहे व्यवहार से संबंधित हो, किसी भी प्रकार के जीवन के किसी भी पहलू से संबंधित हो, यदि वो विज्ञान सम्मत नहीं है तो स्वीकार करने योग्य नहीं मानी जाएगी। ऐसा मैं देख रहा हूं। और इस समय एक ऐसे विज्ञान सम्मत धर्म की आवश्यकता है जो मानव मात्र को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी व्यवधान के सही दिशा प्रदान कर सके। और ये विचारधारा आपको केवल भारत के वैदिक साहित्य में मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला है। अन्यत्र क्यों नहीं मिलेगा, उसका कारण मेरे से समझिए। इसमें दुनिया में 3 विचारधाराएं प्रमुख हैं। एक ईसाईयत की विचारधारा है, एक इस्लाम की विचारधारा है, और एक कम्युनिस्ट की विचारधारा है। 2 विचारधाराएं तो धर्म से संबंधित हैं और एक है समाज रचना से। लेकिन ये तीनों विचारधाराएं अवैज्ञानिक हैं। विज्ञान ने इन तीनों विचारधाराओं को अस्वीकार कर दिया है
क्रिश्चियनिटी की विचारधारा विज्ञान विरोधी है और उसकी सारी मान्यताएं और स्थापनाएं जो हैं वह विज्ञान सम्मत नहीं है। इसलिए वर्तमान का क्रिश्चियन समाज स्वयं उसको अस्वीकार करता चला जा रहा है। आप लोग भी देखते होंगे इन देशों में। थोड़ा सा इस शब्दों में Either I can speak in English or I can speak in Hindi. Okay, but I will try to, I will try to make it easy. So, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इस समय विश्व में ऐसी स्थिति है कि क्रिश्चियनिटी के पास जितनी मान्यताएं हैं वो सब अवैज्ञानिक हैं। इसलिए क्रिश्चियन समाज उसे अस्वीकार करता जा रहा है। बाइबल कहती है कि मनुष्य की सृष्टि हुए केवल 4,400 वर्ष हुए हैं ईसा पूर्व, यानी कहने का प्राय 6,500 वर्ष हुए हैं। और अब के वैज्ञानिकों ने 4 लाख वर्ष का पुराना मानव अवशेष प्राप्त किया है, मानव अवशेष, और 15,000 वर्ष के पुराने मानवीय संस्कृति प्राप्त की है, और हजारों वर्ष के पुराने आज भी मानवीय संस्कारों के अवशेष दुनिया में उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिए यह कहना कि सृष्टि हुए केवल 6,500 वर्ष हुआ है, ये तो बिल्कुल अमानवीय विचारधारा और अवैज्ञानिक की नहीं बल्कि यानी अनपढ़ लोगों की विचारधारा है। और दूसरी बात, ये मनुष्य की उत्पत्ति जो है ये 6 दिन में हुई है, ऐसा भी बाइबल टीच करती है। 6 दिन में ये सारी सृष्टि बनी और 6वें दिन मनुष्य बना, 7वें दिन परमात्मा जाकर के विश्राम किया। ये भी आप लोग सुने होंगे। ये भी बिल्कुल अवैज्ञानिक है। ये कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि 6 दिन में सृष्टि का विकास हुआ है। ये तो सृष्टि हजारों वर्ष तो लग जाते हैं केवल पृथ्वी को सॉलिड होने में, गैसेस से सॉलिड होने में हजारों नहीं लाखों वर्ष लग जाते हैं। और उस पृथ्वी के ऊपर मानवीय सृष्टि होने में तो बहुत वर्षों के पश्चात कई लाख वर्ष लग जाते हैं। फिर बाद में मानवीय सृष्टि होती है और मानवीय सृष्टि हुए लाखों वर्ष हो गए हैं। इसलिए बहुत सी और भी विचारधाराएं, मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं उसकी बातें कर रहा, मैं केवल ये बताने के लिए कर रहा हूं कि आजकल बाइबल के ऊपर जो बेस्ड रिलीजन है उसको विज्ञान सम्मत नहीं कहा जा सकता, और मानव समाज, पढ़ा लिखा मानव समाज उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। न तो विज्ञान सम्मत ईश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न तो उसके सिद्धांतों को और न मान्यताओं को। और प्रकारांतर से वही बातें आप लोगों में शायद सबने ने पढ़ा हो, यानी ओल्ड टेस्टामेंट इज द बेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड इस्लाम टू। Islam's base is Old Testament. Only there is differences only in languages, nothing else. यानी इस्लाम धर्म जो है उसका भी बेस क्रिश्चियनिटी का ही बेस है, जुडाइज्म का ही बेस है, वही पुरानी बाइबल है। केवल वहां पर नाम जो है वो दूसरे रूप से कहा गया है। वहां एडम और ईव कहते हैं, वो आदम और अहवा कहते हैं। वहां भी इब्राहिम की मान्यता है, वहां भी इब्राहिम की मान्यता है। वहां भी डेविड की मानता है, वहां भी डेविड की मानता है। वो डेविड कहते हैं, वो दाऊद कहते हैं, वो भी है सभी एक ही। और इब्राहिम की संतानों में ही इस्माइल हुआ है, और इस्माइल की संतानें जो हैं वो अरब में जाकर बसी, अरब में बसी। और इब्राहिम की संतानें जो थी वो मध्य एशिया में बसी, बेबीलोनिया में। तो वो दोनों भाई भाई हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, विचारधारा एक है। विचारधारा में अंतर क्या है कि ईसाई मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट वाज प्रोफेट of Godhead, और मुसलमान मानते नो, that was prophet, there is no doubt, but last prophet of Godhead is Muhammad Sahib. Only this differences. Isai believe in Old Testament and New Testament, and these people believe in Quran. But if you will read Quran, you will find out that the same mythology you will find there, and same ideology too. There is no differences between two. Due to that, you know very well, दुनिया में किसी भी देश में धर्म के प्रचारक जा सकते हैं, लेकिन अरब में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए कि वहां के लोग बिगड़ जाएंगे। जैसे पश्चिम के लोग अपने ईसाइयत को छोड़ करके अब भारतीय धर्म की तरफ दौड़ रहे हैं, ऐसे अरब के लोग तो दूसरे दिन छोड़ करके भग जाएं यदि उनको सही पता चल जाए तो। लेकिन वहां बुद्धि का दिवाला
निकाल दिया जाता है। आपने सुना होगा खुमानी ने अपने यहाँ के प्रोफेसरों को 2000 प्रोफेसरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली छुड़वा दिया था। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है ईरान में, क्योंकि कोई अपने ब्रेन का प्रयोग नहीं कर सकता स्वतंत्र रूप से यदि कुरान के विपरीत है तो। कुरान के अनुकूल चाहे जो कुछ बोलते जाओ, तो जिस देश में, जिस समाज में, जिस जाति में, जिस ग्रुप में कुरान के विपरीत बोलने का अधिकार ही नहीं है, आप सत्यवाद भी नहीं कर सकते, उसका दुनिया में प्रचार और प्रसार होगा, उससे मनुष्यता का कल्याण होगा, ऐसी कल्पना ही व्यर्थ है। इसलिए ये दोनों विचारधाराएं तो रिजेक्टेड हो गई है विचारवान व्यक्तियों की दृष्टि में। अब रह गई कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म को तो आप जानते हो, तो आत्मा रहित एंड सोल लेस बॉडी। स्ट्रक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, बट देयर इज नो सोल। ओके, this is my description. Communism is that kind of way of life where there is no soul but body only. जब आप ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि कम्युनिज्म का इजाद करने वाला, उत्पन्न करने वाला एक जर्मनी था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था, आपको मालूम होगा। हाँ, और उसने 24 वर्ष तक ब्रिटिश म्यूजियम में बैठ करके, इंग्लैंड की लाइब्रेरी में 24 वर्ष तक बैठ करके, तब उसका अध्ययन करके, तब उसने दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी, जो कम्युनिस्टों की बाइबल कही जाती है। दैट इज द बाइबल ऑफ कम्युनिज्म। अब उसके आधार पर जो कुछ उसने शिक्षा दी है, उस शिक्षा को यदि आप पढ़ें और समझें, क्योंकि मैंने तो पढ़ा उसे, इसलिए मैं आपके साथ दावे के साथ बोल रहा हूं, आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल मनुष्यता के विपरीत विचारधारा है। क्योंकि मनुष्यता के अनुकूल विचारधारा वही हो सकती है जो कि व्यक्ति को योग्यता के अनुसार उसके लिए अधिकार की सुरक्षा रखे। जहां योग्यता के अनुसार अधिकार की व्यवस्था नहीं है, राइट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, वेयर देयर इज नो लॉ, देयर इज नो सिस्टम फॉर राइट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, हाउ दैट सोसाइटी कैन डेवलप। वह समाज, वह देश कैसे विकसित हो सकता है। और इसका नग्न स्वरूप आप लोगों ने अभी देखा है। कुछ वर्ष पहले मैं भी उन दिनों यूरोप में ही था जब जर्मनी के दोनों देश इकट्ठा हुए हैं। हाँ, और उसके पश्चात रूस की जो गति हुई है कम्युनिज्म के परिणाम स्वरूप, कई देश ऐसे निकले हैं उसमें से बाहर जिनको आज रोटी खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। यदि ये पश्चिम जर्मनी न संभालता तो पूर्वी जर्मनी के लोग भूखे मर जाते। आप लोग अच्छी प्रकार जानते हो, बिकॉज देयर वॉज नो लॉ, सच काइंड ऑफ लॉ। इस प्रकार के वहां पर नियम नहीं थे जहां पर कि मनुष्य योग्यता के अनुसार अपना अधिकार प्राप्त करे। और जिस देश में, जिस समाज में यह नियम नहीं होगा, उस देश का व्यक्ति कभी विकसित नहीं हो सकता। विकास क्यों करेगा? क्यों विकास करेगा? किस लिए करेगा? ये तो आप लोग जानते हो ना कि मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है जिसमें हमेशा अधिकार की भूख रहती है, और अधिकार की भूख को तृप्त करने के लिए ही वो अपने में योग्यता का सृजन करता है। और इसीलिए समाज में कंपटीशन जो है, स्पर्धा जिसे कहते हैं हमारे यहां, स्पर्धा की प्रतिष्ठा इसीलिए हुई है कि एक को देख करके दूसरा और आगे बढ़ने की कोशिश करे। और जहां योग्यता के अनुसार अधिकार की व्यवस्था ही नहीं है, वेयर देयर इज नो सिस्टम, such kind of system where there is no right according to ability, then how person will try to create ability in his own self? वह मनुष्य अपने में योग्यता के सृजन का प्रयत्न क्यों करेगा? और यदि नहीं करेगा तो देश पीछा हो जाएगा, समाज पीछा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि कम्युनिज्म भी ऐसी विचारधारा नहीं है जो मनुष्य को सेटिस्फाई कर सके। ये तीन विचारधाराएं दुनिया में प्रचलित है इस समय, और तीनों विज्ञान की दृष्टि से और युक्ति की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से बिल्कुल मनुष्यों के लिए अनावश्यक और अनुपयोगी सिद्ध हो गई है। अब एक चौथी विचारधारा और है, वो है भारतीय विचारधारा। लेकिन दुर्भाग्य से 700 वर्षों से वो विचारधारा नीचे दबी हुई है। 700 वर्षों से, जब दुनिया में मनुष्यता का अभी जन्म नहीं हुआ था, मनुष्य तो पैदा हो गए थे लेकिन मनुष्यों में मनुष्यता का जन्म नहीं हुआ था अभी, तब भारत अपने आप में पूर्ण विकसित देश था। दुनिया के लोग ये मानते हैं कि भारतीय कल्चर इज ओल्डेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, एंड एवरी लर्निड मैन बिलीव दैट वेदास आर ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड इन द वर्ल्ड।
दुनिया में वेद से प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं है, दुनिया के सभी विद्वान इसे स्वीकार करते हैं। और आप लोगों को शायद यह भी पता होगा कि भारत के उस गौरवशाली युग में जर्मन से भी लोग भारत में पढ़ने जाया करते थे। वहां के तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे, जर्मन भी जाया करते थे, और वैदिक विज्ञान इन्होंने वहीं से लेकर के अपना विकास किया था। तो मैं आप लोगों को केवल ये बताना चाहता था कि दुनिया के सामने एक विचारधारा रह गई है जो कि 700 वर्षों से ट्रोडन जिसे कहते हैं कुचली जा रही थी। ईसाइयों के अत्याचार 200 वर्ष तक, और लगातार 500 वर्ष तक मुसलमानों के अत्याचार। उस विचारधारा को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन भारत में एक समाज ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है, जो वर्ग, जो समाज अपने जीवन को केवल अपने संस्कृति, सभ्यता और धर्म को सुरक्षित रखने के लिए ही समर्पित किए रहता है, जिसको हमारे यहां संत समाज कहते हैं। वो संत समाज का कंसेप्ट आपको दूसरे धर्मों में नहीं मिलेगा, ईसाइयत में भी नहीं मिलेगा, क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलेगा, कहीं जुडाइज्म में नहीं मिलेगा कहीं, और वो इस्लाम में भी नहीं मिलेगा। ये बात याद रखो। वहां जितने होते हैं प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट सब पेड होते हैं, किसी संस्था के नौकर होते हैं, लेकिन भारत का कोई साधु किसी का नौकर नहीं होता। इज फ्री ऑलवेज। और वो केवल अपने धर्म और आत्म उत्थान के लिए ही अपने आप को भगवान को समर्पित करता है, और किसी प्रलोभन से नहीं। उसे न स्वर्ग जाने की चाह होती है और न तो उसे नर्क से भयभीत होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि उस वर्ग ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता को इस 700 वर्षों के डिजास्टर्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अपहॉल से, उठापटक से, घोर अत्याचार से सुरक्षित रखा। अब भारतीय संस्कृति के प्रकाश का समय आ गया है, और उसके सौभाग्य से मैं तो विदेशियों को भी बताता हूं, अमेरिकन को भी कहता हूं, कि ये विज्ञान का जो विकास हुआ है, ये भारतीय संस्कारों के प्रकाश के लिए उपयोगी हुआ है। ये भगवान का बड़ा सुंदर विधान रहा है कि दुनिया में वैदिक विचारधारा को प्रकाशित करने के लिए विज्ञान का विकास हुआ। क्योंकि विज्ञान विकसित न होता, न दुनिया इतनी छोटी होती, और न तो वैदिक विचारधारा सारी दुनिया में फैलती। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन इस समय एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो दुनिया को उस वैदिक विज्ञान, यानी वैदिक विज्ञान को दुनिया तक पहुंचावे, दुनिया के मनुष्यों को प्रदान करे। और उसके लिए भारत में बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं इस समय। और कुछ वर्षों से ब्रह्मर्षि मिशन नाम की मेरी संस्था यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, और ये जो कैरिबियन कंट्री कही जाती हैं, ट्रिनिडाद, गियाना, सूरिनाम, इन देशों में, इन सारे देशों में प्रचार हो रहा है। अफ्रीका के कुछ देश हैं उसमें, इन सारे देशों में उसका प्रचार चल रहा है। और हम विज्ञान सम्मत धर्म की सीख देते हैं। हमारी ये मान्यता है कि धर्म वही टिकेगा जो विज्ञान सम्मत होगा, रिलीजन वही एग्जिस्ट करेगा जो साइंटिफिक होगा, बिकॉज रिलीजन इज अ वे ऑफ रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। इफ दैट रिलीजन इज नॉट फुलफिलिंग दिस डिमांड ऑफ ह्यूमन काइंड, देन दैट कांट एग्जिस्ट। धर्म जो है वह मनुष्य को परम सत्य का बोध कराने के लिए प्रतिष्ठित किया गया है। यदि जो कोई धर्म मनुष्य को उस परम सत्य का बोध कराने में सक्षम नहीं है तो वो टिक नहीं सकता, उसकी उपयोगिता ही नहीं है। क्या उपयोगिता होगी उसकी? इसलिए मैं आप लोगों के सामने जिसे मानव धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, शाश्वत धर्म कहते हैं, उसकी सीख देने के लिए यहां बैठा हूं। मेरा यही प्रयोजन है कि आप उस सत्य को समझें। मनुष्य का जीवन जो है वह अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ इन्फिनिटी। जैसा कि मैं भी आपको मेडिटेशन के समय समझा रहा था, वी आर पार्ट ऑफ इन्फिनिटी बिकॉज वी आर सीइंग दिस इज ए स्पेस, दिस वेकेंट स्पेस, बट if you will pay your heed, you will find out that this space is full with divine energy, and same energy is the cause for this physical structure too. Same energy, combination of energy, bundle of energy appear in the form of our body. Our body is nothing but bundle of energy. Okay? So that energy is infinite and flooding in the space everywhere. It means we are part of infinity, nothing else. हमारा जो जीवन है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, हम उस अनंत सत्ता के अंश हैं, एक अंश है, एक पार्ट है।
और वैसे पार्ट हैं जैसे कि समुद्र का एक बूंद होता है, और बूंद तो फिर भी समुद्र से अलग होता है, उसको तो हम स्पेस में बता सकते हैं ये बूंद है, लेकिन अपने आप को तो ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा के उस अनंत शक्ति से अपने आप को कहीं भी अलग नहीं कर सकते। एक बार किसी राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि क्या कोई ऐसा काम है जिसको मैं कर सकता हूं और परमात्मा नहीं कर सकता? उसने कहा ऐसे साहब बहुत काम है जो आप कर सकते हैं लेकिन परमात्मा नहीं कर सकता। कहा उसमें से एक बता दो। कहा आप अपने राज्य से किसी को भी निकाल सकते हैं लेकिन परमात्मा अपने राज्य से किसी को निकाल नहीं सकता। यू कैन एक्साइल एनी पर्सन फ्रॉम योर किंगडम बट गॉड कांट, बिकॉज देयर इज नो अदर स्पेस। ही इज एब्सोल्यूट and absolute is infinity, and how infinity can exile any part of atoms from infinity? जरा कल्पना कीजिए, ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए हम सब उसी एक के अभिन्न अंग हैं, और ये बात केवल कही नहीं गई है, वेद में, शास्त्र में, गीता में, रामायण में, जितने ग्रंथ हैं भारत में ऋषियों द्वारा अनुभूत और यानी इनिशिएटेड, प्रतिष्ठित, उन सारे ग्रंथों में एक ये घोषणा है कि ये सारा विश्व जो है ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ये विराट जो है परमात्मा की अभिव्यक्ति है, और हम सब उस विराट के अंग हैं। जैसे हमारे शरीर में एक कोई दोष आ जाए तो पूरे शरीर को पीड़ा देता है, ऐसे यदि एक व्यक्ति का जीवन पतित हो जाता है तो पूरे विराट को वह दूषित कर देता है। इसलिए हम तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक कि विराट स्वयं में पूर्ण न हो, सुखी न हो। यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि जहां पर पश्चिम की विचारधारा में हर एक व्यक्ति की अलग एंटिटी है, वहां पर भारतीय विचारधारा में किसी भी व्यक्ति की अलग कोई एंटिटी नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है। एवरीबॉडी इज द पार्ट ऑफ इंफिनिटी। इसलिए यहां पर व्यक्तिवाद का प्रसार है, और भारत में व्यक्तिवाद का प्रसार नहीं रहा है, अध्यात्मवाद का प्रसार रहा है। व्यक्तिवाद की संतान है, जानते हो क्या? पूंजीवाद। पूंजीवाद कहां से पैदा होता है? व्यक्तिवाद से। व्यक्तिवाद क्या है? जब व्यक्ति की इकाई मान ली जाए कि एक व्यक्ति स्वयं में इंडिविजुअल है और उसका एग्जिस्टेंस है, तो वो अपने सुख के लिए कोशिश करता है कि मेरे सुख के जितने साधन है वो मेरे पास रहें और मेरे परिवार के पास रहें जिनको वो प्यार करता है। तो सुख के साधनों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसकी आवश्यकता है या नहीं, वो सोचता है कि आज तो सुख के साधन हमारे पास हैं, यदि कल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो कल की चिंता भी करता है वो, और कल की नहीं बल्कि 100 वर्ष की चिंता करने लगता है, और यहां तक कि 7 पुश्त की चिंता करने लगता है कि हम ही नहीं, हमारे आने वाली 7 जनरेशन तक हमारी कमाई खाती रहे, जिससे कभी हमारे परिवार में दुख न आवे। और दुख से बचने के लिए, अभाव से बचने के लिए एक्युमुलेशन की वृत्ति उसमें जागृत हो जाती है, होल्डिंग की वृत्ति जागृत हो जाती है, एंड रिजल्टेंटली समाज में एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है। समाज में एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है, और परिणाम यह होता है कि समाज में संघर्ष शुरू हो जाता है। जो बुद्धिमान है वह बलवान नहीं होता, जो बलवान है वह बुद्धिमान नहीं होता। ये तो आप लोग जानते हो अच्छी प्रकार से। बहुत कम ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि आदमी बलवान भी हो और बुद्धिमान भी हो। और जहां बुद्धि है वहां बल नहीं, जहां बल है वहां बुद्धि नहीं। इसलिए जब बुद्धि से व्यक्ति एक्युमुलेशन करता है, होल्डिंग करता है, तो बलवान उसे छीनने के लिए तैयार हो जाता है। और यही संघर्ष चल रहा है दुनिया में, आप देख रहे हो। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है व्यक्ति स्वयं में कन्फाइंड होकर के, सीमित होकर के रह जाता है, और वह अपने सहित अनेकों के लिए दुख में कारण बन जाता है। स्वयं तो दुखी होता है, सफर करता है स्वयं, और अनेकों के दुख में कारण हो जाता है। और ये व्यक्तिवाद जो है पूंजीवाद को जन्म देता है, और व्यक्तिवाद और पूंजीवाद दोनों मिलकर के इस दुनिया को संतप्त किए हुए हैं, तो आपको पता ही है इस समय। इसीलिए चारों तरफ त्राह त्राह मचा हुआ है। अब इससे मुक्ति पाने के लिए पश्चिम में 2 विचारधाराएं पैदा हुई। व्यक्तिवाद से मुक्ति पाने के लिए तो समाजवाद पैदा हुआ, और पूंजीवाद से मुक्ति पाने के लिए साम्यवाद पैदा हुआ। लेकिन वो दोनों उसी अर्थवादी विचारधारा पर प्रतिष्ठित हो गई। उनका बेस क्या रहा?
कुछ नहीं। कहते हैं किसी भी कम्युनिज्म के विचारधारा वाले व्यक्ति से पूछो, वो कहता है कि मेरी फिलॉसफी साइंटिफिक है, लेकिन साइंस का यदि प्रयोग करो तो वहां कुछ नहीं है, बिल्कुल बोगस, जिसमें कोई बेस नहीं है, कोई तर्क नहीं, कोई युक्ति नहीं। मैं अच्छी प्रकार से कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को पढ़ने के पश्चात आपको बता रहा हूं। सौभाग्य से मैंने दुनिया के जितने धर्म हैं सारे की विचारधाराओं को पढ़ा है, इसलिए मैं बड़े विश्वास और दावे के साथ आपको क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ही नहीं दुनिया के सारे धर्मों की बात बता सकता हूं। और उसके साथ तुलनात्मक रूप से मैंने वैदिक धर्म की व्याख्या जो अभी आपको सुनाई है कि वैदिक धर्म आपको यह बताता है कि यदि आपकी एक अंगुली मोटी हो जाए तो रोगी कही जाएगी, वो स्वस्थ नहीं कही जाएगी। यदि शरीर के अनुपात से उसमें मोटाई आएगी तो आप स्वस्थ कहे जाएंगे। इसी रूप से समाज का यदि एक व्यक्ति अपने आप को संपन्न और बड़ा समझने लगेगा तो समाज का एक बहुत बड़ा रोग होगा। कैसे? जैसे अंगुली के मोटे हो जाने से अंगुली रोगी कही जाती है, पांव के मोटे हो जाने से पांव रोगी कहा जाता है। पील खाना कहते हैं ना, एलिफेंट जिसे कहते हैं, एक रोग होता है, पांव मोटा हो जाता है। तो पांव की मोटाई स्वस्थता का निशानी नहीं है, बल्कि रोग का निशानी है। पेट की मोटाई जो है रोग का निशानी है। इसलिए शरीर जब सुडौल होगी, सभी अंग अपने स्थान पर उचित रूप से रहेंगे, तब वो स्वस्थ कहे जाएंगे। भारतीय दर्शन दुनिया को ये दृष्टि देता है, ये वैदिक विज्ञान दुनिया को यह समझाता है कि धर्म का यही संदेश है कि तुम अपनी योग्यता के अनुसार अधिकार के उपभोग की चिंता करो। यदि अधिक अधिकार की चाह है तो स्वयं में योग्यता की वृद्धि करो। लेकिन याद रखो, योग्यता का सृजन अधिकार के लिए नहीं होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? कर्तव्य के लिए। योग्यता का सृजन कर्तव्य के लिए हो, अधिकार के लिए नहीं। यदि तुम कर्तव्यनिष्ठ हो गए तो अधिकार तुम्हारे पीछे चलेगा, और यदि तुम अधिकारनिष्ठ हो गए तो कर्तव्य से विमुख हो जाओगे और पतन हो जाएगा तुम्हारा भी, तुम्हारे समाज का भी। इसलिए भारतीय दर्शन में योग्यता का सृजन कर्तव्य की पूर्ति के लिए निर्धारित किया गया। अब बात अलग है, दुर्भाग्य है देश का इस समय, स्वतंत्रता के बाद वहां डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी की बागडोर उन लोगों के हाथ में पड़ी जिनको भारत का कुछ पता नहीं था, जो विदेशी संस्कारों से युक्त थे, जो भारत को यूरोप बनाना चाहते और रशिया बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से भारत की दिशा बदल गई। आज भारत में भी योग्यता की उपेक्षा करके अधिकार की मांग बढ़ रही है। आप लोग सुने होंगे, वहां जो पार्टियां हैं हर एक व्यक्ति को अधिकार देने का प्रलोभन दे करके हम तुम्हें अधिकार देंगे, तुम हमारे वोट दे दो, योग्यता तुम्हारे में है वा नहीं है। अभी मैं परसों अखबार पढ़ रहा था, भारत से अखबार आते हैं, वहां पर एम्बेसी में तुम्हें मंगाया करता हूं मेरे पास, तो मैं पढ़ रहा था कि एक जगह सीटें सुरक्षित थी, 21 सीटें सुरक्षित थी एक वर्ग विशेष के लिए, और उसमें से ये निर्धारित था कि यदि 40% उसको नंबर मिलेंगे तो उसको यानी उसमें स्थान दे दिया जाएगा। सवर्णों के लिए तो 80% है, 90% है। अब 80%, 90% नंबर आवे तब आपको मिलेगा वह स्थान, नहीं तो नहीं मिलेगा। और उस वर्ग के लिए 40% निश्चित किया गया, फिर बाद में 35% कर दिया गया, अब 33% कर दिया गया। और दुर्भाग्य की देखिए कि उसमें 21 सीटें थी उसके लिए, उसमें से 21 कैंडिडेट आए नहीं, 2 कैंडिडेट आए, और उसमें से एक ने जो कलेक्ट किया वो 34% किया, एक नंबर वो कर पाया। और वो भी, और उसको इसलिए दे दिया गया कि अब इसको नहीं आ रहा 40 नहीं, यानी 33 आ रहा, नहीं 34 आ रहा, तो जितना आ रहा उतने में ही दे दो। एक सीट भर दी और एक तो बिल्कुल फेल हो गया, तो कहा कि इसको अब क्या करेंगे, उसके 25 नंबर आ गए, अब उसको भी नहीं रख सके। और वहां पर उसमें अखबार वाले ने लिखा कि 20 सीटें वैकेंट हैं, लेकिन उस पर योग्य लड़के बैठे हुए हैं जो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, उनको इसलिए नहीं दिया जा सकता कि वो सवर्ण के लड़के हैं और सीट अवर्ण की है। अब योग्यता के अनुसार अधिकार की व्यवस्था वहां भी नष्ट हो रही है, और उसका परिणाम संघर्ष होगा, संघर्ष। क्योंकि जहां पर व्यक्ति योग्यता के अनुसार अधिकार नहीं पाता, अधिकारानुसार कर्तव्य पालन नहीं करता, वहां पर संघर्ष के सिवा और कुछ नहीं होता। अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में जब अधिकार जाता है तो क्या होता है कि अयोग्य है वो योग्यता अधिकार के अनुसार कर्तव्य पालन तो कर नहीं सकता।
जब अधिकार के अनुसार कर्तव्य पालन नहीं करेगा तो क्या करेगा? अपने से नीचे वाले को दबाएगा, अपने से ऊपर वाले की चापलूसी करेगा। और जहां पर अपने नीचे वाले को दबाना, ऊपर वालों की चापलूसी की व्यवस्था शुरू हो गई, वहां पर पतन के सिवा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक है, ये अन्याय बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, किसी भी देश में नहीं चला, तो अब क्या चल सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भारतीय विचारधारा में हर एक व्यक्ति के लिए योग्यता के सृजन की व्यवस्था है और योग्यतानुसार कर्तव्य पालन की प्रेरणा है और कर्तव्यानुसार अधिकार की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भारतीय दर्शन मनुष्य मात्र को संदेश देता है और वो बिल्कुल युक्ति युक्त है, बिल्कुल तर्क युक्त है और मानवतावादी दृष्टिकोण है। हर एक मानव के लिए विकास की वहां पूरी व्यवस्था है। ये मैं मानता हूं कि कुछ शताब्दियों से, जब से मुसलमानों का आक्रमण हुआ भारत पर, तब से वो व्यवस्था खंडित हो गई और पुरानी व्यवस्था नहीं रही। 1000 वर्ष पहले जो भारत था, जो संस्कार थे, जो व्यवस्था थी, जो दर्शन था, आज भारत में वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कारण क्या? ये भी एक बड़े महत्व की बात है, इसको भी आप लोग समझिए। जो देश बहुत संपन्न हो जाता है वहां के नागरिकों में प्रमाद आता है। प्रमाद जानते हो ना? हाँ, प्रमाद नहीं जानते? प्रमाद माने होता है लेजीनेस। दे बिकम लेजी, पीपल बिकम लेजी, ओके, बिकॉज दे थिंक दैट एवरीथिंग इज हियर, व्हाई आई वर्क हार्ड। वो ऐसा सोचने लगते हैं, मैं क्यों मेहनत करूं, हमारे पास सब कुछ है। बड़े आदमियों के लड़के प्रमादी होते हैं, लेजी होते हैं, स्लगी होते हैं, आलसी होते हैं, उनसे काम नहीं होता क्योंकि उनके बाप दादे कमा कर रख दिए हैं। वो कहते बहुत है, इतना क्या करना लेकर के। इसलिए उनमें योग्यता के सृजन की भावना भी खत्म हो जाती है। अपने आप में एबिलिटी क्रिएट नहीं करते वो, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते वो, उसके लिए स्ट्रगल नहीं करते वो, एफर्ट नहीं करते वो। ये स्थिति आती है, हर एक देश के पास आती है। जैसे आज से 50 वर्ष पहले, केवल 50 वर्ष, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक बर्तानिया का साम्राज्य था। आप लोगों को याद होगा ना? हाँ हाँ, जो उससे अधिक एज के हैं उनको तो खूब याद होगा। जहां सूर्य उदय होता है वहां से लेकर के जहां अस्त होता है वहां तक बर्तानिया का साम्राज्य था इस पृथ्वी के ऊपर। और आज उसकी गति देखिए, क्या स्थिति है वहां की। ऐसा क्यों हुआ जानते हो? एक और उदाहरण दूं आपको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस विजयी हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस को गिरने में 6 दिन लगे थे, केवल ओनली 6 डेज। क्यों? कारण क्या? इसलिए कि वहां के लोग सब ऐशियात बन गए थे। जहां पर अधिक संपत्ति आई, अधिक सुविधा आई, वहां के लोग ऐशियात में पड़ जाते हैं। वो प्रमादी हो जाते हैं, स्लगी हो जाते हैं, वो लेजी हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते, उनमें स्ट्रगल करने की क्षमता नहीं होती, उनमें उन्नति करने की चाह नहीं होती, वो एम्बिशियस नहीं होते। इसलिए वहां पर उनका पतन होता है। और यही स्थिति भारत की हुई। भारत बहुत बड़ा संपन्न देश था। कितना संपन्न था भारत, यदि आपको जानना हो तो आप चाइनीज यात्री के संस्मरण पढ़ें, ह्यून-सांग के, फाहियान के संस्मरण पढ़ें, जो चाइना से 200 यात्री आए थे भारत में समय समय पर। और उनके संस्मरण है, उसको पढ़ करके आपको ये नहीं लगेगा कि आप भारत की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारत की स्थिति पढ़ रहे हैं। एल-ब्रूनी के संस्मरण पढ़ें आप। और जो यूनान का राजदूत भारत में था चंद्रगुप्त के राज दरबार में, उस मेगास्थनीज के संस्मरण पढ़ें आप, आपको आश्चर्य होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कभी ऐसा भारत था हमारा। ह्यून-सांग लिखता है कि 7 वर्ष मैंने भारत में बिताया। 7 वर्ष, 1-2 दिन नहीं रहा था वो, 7 वर्ष तक रहा था। वो कहता है कि भारत में मैंने कहीं भिखारी नहीं देखा, पूरे देश में। हमने वहां ये नहीं देखा कोई किसी की मजदूरी करता हो, नौकरी करता हो। हमने ये नहीं देखा कोई अपने घर में ताला लगाता हो, क्योंकि वहां चोरी का भय नहीं है। वो कब आया था जानते हो? जब भारत में गुप्त वंश का शासन था, गुप्त वंश के शासन। और गुप्त वंश का शासन 1-2 दिन नहीं रहा, 400 वर्ष रहा भारत में। वो भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारत महान संपन्नशाली देश था। आज भी इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री, देयर इज नो डाउट, पॉपुलेटेड बाय पुअर पीपल।
और ये हम नहीं कह सकते, अब तो नहीं कह सकते पुअर पीपल, बिकॉज दे आर वेरी रिच पीपल, या रिचर देन एनीवेयर यू विल फाइंड देयर, बट दे आर फ्यू। जो वहां की 90 करोड़ जनता है उसमें यदि आप देखें तो 20% भी नहीं मिलेंगे जिनको आप रिच कह सकते हैं। और उसका परिणाम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में अप्लाई नहीं हुई, दुर्भाग्य है। अब भारत में एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हुआ है साधु समाज का, और वो इस विषय में प्रयत्नशील है। भारत के 10,000 विद्वान महात्मा संगठित होकर के राष्ट्रीय संत समिति का गठन किया गया है, और उसमें अब जन जागृति का काम ये चल रहा है, और भारत की पुनः प्राचीन परंपराओं को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब कांप रही हैं, सब कांप रही हैं, और सब देख रही कि ये महात्मा लोग पता नहीं हमारा क्या करेंगे। करना ये स्थिति है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि हर एक देश के लिए अप डाउन जिसे कहते हैं ना, उन्नति और ह्रास, ये चलता रहता है, ये सृष्टि का चक्र है। और इस चक्र में भारत कभी बिल्कुल नीचे से होकर के अब ऊपर की तरफ आ रहा है, गुजर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ वर्षों बाद भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय जीवन पद्धति सारी दुनिया को प्रकाश प्रदान करेगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, क्योंकि वो वैज्ञानिक है। इस वैज्ञानिक युग में वही संस्कृति, वही सभ्यता, वही धर्म जीवित रहेगा जो विज्ञान सम्मत होगा, और वो विज्ञान सम्मत धर्म जो है भारत के पास है, इसमें कोई संदेह नहीं। और आज हजारों लोग अपने जीवन को समर्पित करके, उसका अनुसंधान करके दुनिया में प्रकाशित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। उसमें हमारा भी थोड़ा सा योगदान है, हम भी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विज्ञान की दृष्टि से धर्म की व्याख्या करते हुए अब तक मैंने 40-50 पुस्तकें लिखी है इस पर, धर्म और विज्ञान से संबंधित। और जगह जगह पर हम जाते हैं दुनिया के हर एक देश में, वहां पर संदेश देते हैं, और लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और उसका अनुकरण कर रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमें हर एक जगह जहां भी जाता हूं इसमें सफलता मिल रही है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये मेरे शिष्य भी आपके हॉलैंड में यहाँ रहा करते थे, इंजीनियर थे, और इन्होंने त्याग पत्र दे करके अपने आप को इस कार्य के लिए समर्पित किया है। ऐसे मेरे पास जितने शिष्य हैं सभी हाईली क्वालिफाइड हैं, और सभी अपने अच्छे सर्विस से और अच्छे परिवारों से निकल करके, बिजनेस को त्याग करके मेरे साथ लगे हुए हैं, इस काम के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। दिस इज गुड साइन, आई थिंक दिस इज ए गुड साइन। व्हेन यंग मैन आर डिवोटिंग देयर लाइफ फॉर गुड पर्पसेस, दिस इज गुड साइन, एंड आई बिलीव दैट भारतीय कल्चर एंड भारतीय रिलीजन विल शाइन एंड विल बी बीकॉन ऑफ मैनकाइंड इन दिस एरा, देयर इज नो डाउट। मुझे विश्वास है कि इस वैज्ञानिक युग में भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन, भारतीय जीवन पद्धति दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। और दुनिया के लोग इस समय चाहते हैं, देख रहे हैं, क्योंकि साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद, इन चारों से मनुष्यता जो है करा उठी है, कहीं भी इनके लिए स्थान नहीं रह गया है। और दुनिया में कोई ऐसा वाद नहीं है जो मनुष्यों के आंतरिक चाह को पूर्ण करने में सहयोगी हो। केवल एक बात है, वो अध्यात्मवाद है, जिसके लिए गीता में भगवान ने कहा है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। आप लोगों ने सुना होगा, अध्यात्मवाद का पुजारी इस देश में 2 विद्वान हुए इस देश में, एक शोपेन और एक कांट। और तो बहुत से विद्वान हुए हैं जो भारतीय संस्कृति के पुजारी थे इस देश में, लेकिन ये 2 महान फिलोसफर थे, और दोनों ने अपने जीवन को तदनुसार बनाया। शोपेनहावर ने लिखा है कि ये उपनिषदें मेरे जीवन की संगनी है और मरने के बाद भी मेरा ये मार्गदर्शन करेगी। कांट कहता है कि गीता पढ़ने से पूर्व का मेरा जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ गया। और वह कांट जब अपने दोस्त एक अमेरिकन सेंट इमर्सन को गीता भेंट करता है, तो इमर्सन पढ़ता है तो कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जीवन का प्रारंभ आज से हो रहा है। मेरे कहने के प्राय गीता की फिलॉसफी, उपनिषदों की फिलॉसफी, वेदांत की फिलॉसफी आज बड़े बड़े समझदार लोगों के दिमाग को भी सही दिशा प्रदान करने में सक्षम है। और उस गीता और उपनिषद की फिलॉसफी को
जब दुनिया के मनुष्यों के पास पहुंचाया जाएगा जिसमें सोल्लीहुड की सीख है, जिसमें ब्रदरहुड की गंदगी नहीं है। गंदगी है ब्रदरहुड की। किसी क्रिश्चियन से पूछो, वो कहता है जब सब दुनिया क्रिश्चियन हो जाएगी तब दुनिया में शांति हो जाएगी। मैंने एक क्रिश्चियन से पूछा, हम कहा कि 2 महायुद्ध किसने लड़ा है? क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन ने लड़ा है? बोले नहीं। हम कहा दोनों प्रोटेस्टेंट थे, ये नहीं कि दोनों एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़े हों। ना ना, इंग्लैंड भी प्रोटेस्टेंट है और जर्मनी भी प्रोटेस्टेंट है। ये दोनों प्रोटेस्टेंट हैं और दोनों महायुद्ध के मूल कारण बने। इसलिए ये तुम्हारा कहना कि जब सारी दुनिया क्रिश्चियन बन जाएगी तो मनुष्य में ब्रदरहुड आएगा, ये तुम्हारी भ्रांति है। मुसलमान कहते हैं जब दुनिया सारा मुसलमान बन जाएगी तब ब्रदरहुड आएगा। अरे हम कहते हैं ब्रदरहुड कभी नहीं आने वाला इस प्रकार से। ब्रदरहुड आएगा जब सोल्लीहुड आएगा, तब जब तुम अपनी आत्मा को जानोगे तब आएगा। जब तुम्हें अनुभव होगा आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसी मेरी आत्मा वैसे दूसरे की आत्मा है, तब ब्रदरहुड आएगा। और यह ब्रदरहुड आएगा अध्यात्मवाद के बेस पर। ये ईश्वरवाद की दुहाई देने से ब्रदरहुड नहीं आता। पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद ब्रदरहुड नहीं लाएगा दुनिया में। कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और बाकी क्या करें जो मजदूर नहीं हो कहाँ जाएं? किस गर्त में उनको डालोगे तुम? जरा सोचो तो। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में केवल एक अध्यात्मवाद ऐसा वाद है, ब्रह्मवाद एक ऐसा वाद है जो मानव मात्र को उस स्तर पर पहुंचने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है और जो ये सीख देता है कि जो ऊपर उठे हुए हैं उनका पांव पकड़ कर नीचे न खींचो तुम, बल्कि ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करो कि तुम्हारा हाथ पकड़ करके वहां ले जाए जहां वो खड़ा हुआ है। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, ascendment. If you want to ascend towards divinity, then try to call for help, for divine personality, and those divine personality will help you. ये अध्यात्मवाद की सीख है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस विश्व में अध्यात्मवादी विचारधारा जो है वह मानव मात्र के कल्याण में योगदान दे सकती है। और मैं ऐसा समझता हूं कि भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं भी है, किसी भी देश में है, उसे अपने संस्कृति, सभ्यता और विचारधारा पर गौरव होना चाहिए और गौरव के साथ उन लोगों में उस विचारधारा का प्रचार करें, उनको बतावे कि हमारी जीवन पद्धति क्या है, हमारी वे ऑफ लाइफ क्या है, हम किस ढंग से जीते हैं। उसका परिणाम ये होगा कि दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करेंगे। और यदि जो भारत से लोग यहाँ आए हैं केवल ये सोचेंगे कि पैसा मेरा धर्म है, पैसा मेरा कर्म है, पैसा मेरा जीवन है, पैसा मेरा परमात्मा है, तो मैं समझता हूं वो अपने लिए और अपने देश के लिए भी निंदा के पात्र बनेंगे। वो अपने देश का गौरव दुनिया में नहीं प्रतिष्ठित करेंगे बल्कि अपमानित करेंगे उसे। इसलिए मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूं कि आप लोग भी भारत से आए हो, भारत के संस्कारों को अपने में प्रतिष्ठित रखिए। यदि आप ये समझें कि आप कभी भी किसी भी काल में गोरे बन जाएंगे, ये असंभव है, असंभव, इम्पॉसिबल। आप अपना वेश बदल सकते हैं, खान पान बदल सकते हैं, भाषा बदल सकते हैं, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन शकल तो नहीं बदल सकते। ना ना, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये तो वही बना रहेगा। और सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष बाद में भी आपको लोग पहचानेंगे कि यू आर इंडियन, आप भारतीय। और ये बात याद रखिए, यदि आप भारतीय होकर के अभारतीय संस्कार लेकर के जी रहे हैं तो न तो आप इधर के रहेंगे न तो उधर के रहेंगे। एक शायर ने कहा है, न विशाले सनम न खुदाई मिली, न विशाले सनम, न इधर करे न उधर करे। वही स्थिति आपकी भी होगी। इसलिए आप भारतीय बनकर के जिए, गौरव के साथ, आदर के साथ, जैसे हम लोग गौरव के साथ घूम रहे हैं दुनिया में। और किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में जाते हैं, एक दो नहीं अनेकों चर्चों में बोलने जाते हैं, अनेकों यूनिवर्सिटियों में बोलने जाते हैं, इन देशों में विद्यालयों में बोलने जाते हैं, और जहां जाते हैं गौरव के साथ लोग हमारी बात सुनते हैं। और लोगों को बताता हूं कि केवल एक मार्ग है अध्यात्मवाद का, और वही मार्ग तुम्हें शांति दे सकता है, दूसरा नहीं। और वो अध्यात्मवाद भारत के पास है। पश्चिम ने विज्ञान दिया है दुनिया को, हम दुनिया को अध्यात्म देंगे। और विज्ञान जब अध्यात्म के द्वारा प्रकाशित होगा तब वो उपयोगी होगा, और यदि अध्यात्म रहित विज्ञान होगा तो विनाश का साधन बनेगा।
जैसे विज्ञान तो दिया पश्चिम ने, लेकिन पश्चिम ने दुनिया को लाकर मृत्यु के किनारे पर खड़ा कर दिया है। यदि विस्फोट हो जाए तो सारी दुनिया नष्ट हो सकती है विद इन फ्यू मिनट्स, और उसको बचाने के लिए केवल एक विचारधारा है अध्यात्मवाद की, आत्मोत्सर्वभूतेषु। जब तुम अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा समझने लगोगे, तब किसी को दुख देने के लिए तैयार नहीं होगे, किसी के नाश के लिए तैयार नहीं होगे। और जब यह भावना तुम्हारे में आएगी, तभी तुम मनुष्य का लाने के अधिकारी बनोगे, और यहीं से तुम्हारी देवत्व की यात्रा शुरू होगी। इसलिए भारत के अध्यात्मवाद के प्रकाश में तुम अपने भौतिकवादी जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और लोग सुनते हैं इसे, मानते हैं इसे, दुनिया के लोग मान रहे हैं, समझदार लोग। पता नहीं भारतीयों को क्या हो गया है कि वो भौतिकवाद की चकाचौंध में अपने अध्यात्मवाद को ही भूलते जा रहे हैं, जो उनके जीवन का आधार है, जो दुनिया के मनुष्यों का आधार बन सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जो भारत से आए हैं, उनको बड़े गौरव के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने अध्यात्मवादी संस्कारों को अपने साथ रखते हुए यहां के लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। आदर्श। मैं शुरू में 72 में आया था यूरोप में, इंग्लैंड पहले आया, और वहां पर देखा तो सब जिसके घर में वहां पर प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता था, उनके बच्चे यहां पर मुर्गे चरवाते थे। मैं देख करके हैरान रहा, भाई तुम लोग क्या करते हो? तो मेरे से क्या कहते थे, महाराज ये यूरोप है, ये इंग्लैंड है, ये भारत नहीं है। ठीक है भाई, अब मुझे तो काम करना था, इसलिए हम कुछ दिन रुके। उसके बाद में कुछ अंग्रेज मेरे पास जब आने लगे और अंग्रेज मेरे शिष्य बनने लगे, तो एक ग्रुप हमारा बहुत बड़ा तैयार हो गया, 60-70 लड़कों का, और उन्होंने लंदन से करीब 200 मील आगे ले जाकर डोरसेट में मेरा एक आश्रम बना दिया, वहां हम रहने लगे। अब जितने बच्चे रहने लगे हमारे पास अंग्रेज, सब शुद्ध शाकाहारी, मांस नहीं, मदिरा नहीं, अंडे नहीं, प्याज नहीं, मछली नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध जीवन व्यतीत करने लगे। अब इंडियन जब मेरे पास मिलने के लिए जाए तो वहां जाकर देखे, वो हैरान हो, ये क्या? मैंने उनसे कहा, हम कहा कि इनके बाप दादे गऊ मांस के सिवा कुछ नहीं खाते थे और शराब के सिवा कुछ नहीं पीते थे, इनका जीवन देखो, इनको देखकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे लोग बदलने लगे। अब वहां भी आपको हजारों आदमी मिल जाएंगे जो अपना जीवन पवित्र बिता रहे हैं। लोग आपसे पवित्रता की आकांक्षा रखते हैं। जब आपको सुनते हैं कि आप भारत के हो, तो जो भारत के विषय में थोड़ा भी जानता है, वो आपसे आशा रखता है कि आपका जीवन बड़ा पवित्र होगा, आपको अध्यात्मवाद के विषय में पता होगा, आप योग के विषय में जानते होंगे, आप दर्शन के विषय में जानते होंगे, आप फिलोसफी के विषय में जानते होंगे। ये वो आशा करता है क्योंकि आप भारतीय हैं, और भारत का यही अमूल्य निधि है जो दुनिया के अपनी तरफ खींच रहा है। और जब आपके सामने कोई इन सारी बातों पर प्रश्न करे और आप कहें कि नहीं मैं तो वही हूं जो तुम हो, तो क्या कहेगा? यदि व्यक्ति अपनी असलियत को भूल करके किसी की नकल करने लगे, तो नकलची को आप आदर तो नहीं दे सकते, कि देंगे? क्या राय है? नहीं देंगे ना। इसलिए इस समाज में यदि आप असली बनकर रहेंगे तब तो आपको आदर मिलेगा, और यदि नकली बनकर रहेंगे तो आप आदर नहीं पाएंगे। चाहे जितना आप संपत्ति इकट्ठा कर लें, लेकिन आदर तभी मिलेगा जब आप असलियत पर रहेंगे, तब भारतीय बनकर रहेंगे, तब भारतीय संस्कारों से युक्त रहेंगे। अपने खान पान, आहार विहार, जीवन पद्धति को यदि भारतीय संस्कारों से युक्त रखेंगे, तब आपका यहाँ सम्मान होगा, आदर होगा। अन्यथा आप आदर के पात्र नहीं बनेंगे। रोटी कमाने के लिए तो दुनिया में लोग घूम रहे हैं। रोटी तो पशु भी, यानी पशु भी अपना चारा कहीं प्राप्त कर लेता है, और यदि अपने पेट भरने और परिवार पालने में आप भी लगे रहे, तो मेरे विचार से पशुता से ऊपर आप नहीं है। इसलिए भारतीय अध्यात्मवाद के महत्व को समझिए, उसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कीजिए, ये मेरा कहना है। और इसी प्रकार अपने जीवन को बना करके आप यहाँ के लोगों के लिए भी प्रेरणा के आधार बन सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा भारतीय योग और भारतीय अध्यात्म का कितना प्रचार इस समय पश्चिम के देशों में चल रहा है, और लोग किस ढंग से उसको अपनाते चले जा रहे हैं। हम लोग कहते थे कि जीवन शाकाहारी होना चाहिए, लोगों को समझ में नहीं आती थी कि प्रोटीन कहां से उनको मिलेगा बिना मांस खाए। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, प्रोटीन मांस में नहीं है,
वहां तो प्रोटीन के साथ वहां दूषण भी है, वहां रोग भी है, डिजीजेस भी है उसमें। इसलिए रेड फ्लश खाने के लिए यहाँ पे जर्मनी में आंदोलन चल रहा है कि नहीं खाया जाए। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इस विषय में। और यहाँ पर वेजिटेरियनिज्म को प्रचारित करने के लिए संस्थाएं बनी हैं जो काम कर रही हैं पश्चिम में। और भारत से लोग वो जो आए जिनके बाप दादे कभी सोचे भी नहीं थे कि मांस और अंडे खाने चाहिए, वो यहाँ आकर के रामराज में पहुंच गए या रावण राज में पहुंच गए, भगवान जाने क्या स्थिति हो रही उनकी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप भारतीय बनिए और भारतीय संस्कारों से युक्त होकर के अपने गौरवशाली जीवन पद्धति को अपनाइए और उसके प्रकाश में जीवन का विकास कीजिए। सुख से रहिए, आनंद से रहिए, क्योंकि ये जगत जो है परमात्मा की विभूति है और परमात्मा की विभूति में सुख दुख के लिए कहीं स्थान नहीं है। दुख मनुष्य का अपना बनाया हुआ है, अपने अज्ञान बस मनुष्य दुख को जन्म देता है। इसलिए आप उस अज्ञान से मुक्त होकर परमात्मा के इस वैभव का उपयोग करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। यही मेरी मंगल कामना। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया। थोड़े लोग आए ही सही, खैर चलो हम आकर देख तो गए आप लोगों की स्थिति को। और अब मुझे यहाँ से फिर डेनहाग पहुँचना है, 3 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में, तो मैं यहाँ से जाऊँगा। 7 बज गया है, आपके कार्यक्रम का भी समय पूरा हो गया। इसके बाद में मेरे साथ प्रार्थना कर लें और यदि कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं बड़े आराम से। विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओके। और जो लोग मिलना चाहें तो डेनहाग यहाँ से दूर नहीं, यदि हम वहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। आइए मेरे पास, वहाँ मेरा अपना आश्रम है डेनहाग में, वहाँ ठहरने की भी व्यवस्था है, आप मेरे पास आकर के रह भी सकते हैं। और उसके बाद में हम लंदन में रहेंगे 1 महीने तक, वहाँ मेरा आश्रम है और विभिन्न शहरों में वहाँ कार्यक्रम है। 1 महीने रहेंगे, फिर हम 10 अगस्त को वहाँ से कनाडा चले जाएंगे, वहाँ भी हमारा आश्रम है, वहाँ भी व्यवस्था है। तो हम इसी प्रकार से प्रवास में रहते हैं। ब्रह्म ऋषि मिशन हमारा मिशन है, जिसके माध्यम से इस अध्यात्मवादी विचारधारा को हम दुनिया में फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।